Good morning, students of class 5th. Today I am present here to explain you the chapter Family and Relation Part 2. Before we have done Part 1, I hope you have gone through that video, and this is Part 2. Before we have learned about the joint family. Joint family is a large family and it has many family members like grandfather, grandmother, mother, father, uncle, aunt, cousin, brother, sister. And now we are going to learn about the nuclear family. Nuclear family. Nuclear family is a small family which members are father, mother, brother and sister. It is a small family. And in this chapter, they have given the example of Gargi's family. गार्गी की फैमिली का एग्जाम्पल दिया है अपन को न्यूक्लियर फैमिली को जानने के लिए कि न्यूक्लियर फैमिली क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या है, उसके डिसएडवांटेजेस क्या है। न्यूक्लियर फैमिली के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। न्यूक्लियर फैमिली, गार्गी की फैमिली में कौन कौन है? शी इज हैविंग अ ब्रदर, फादर एंड मदर. दे आर लिविंग father, mother and brother and sister. Gargi herself, they are the 4 members in the house home. That is a nuclear family. And the Gargi's mother, what they both are doing the job, parents are doing the job. Gargi's mother is an architect who plans for the buildings complex and father is an engineer. Engineers आप लोगों को पता होगा, अपन ने बड़े बड़े फ्लाईओवर्स देखे होंगे, ब्रिजेस देखे होंगे, तो ये सब इनकी प्लानिंग होती है। ये लोग प्लान करके ये लोग प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और ये इनका फील्ड है इंजीनियर, ठीक है ना। इनके पापा जो है इंजीनियर है और मम्मी है वो आर्किटेक्ट है। Whose father is an engineer? Gargi's father is an engineer. And whose mother is an architect? Gargi's mother is an architect. Okay. All of them share the work in home because parents both of them are doing the job. So all of them have to distribute their work so that everyone will be comfortable and no one will be so much tired. Okay. So of all the family members like Gargi herself, brother, father and mother, or father and mother, all of them have distributed their works. Okay. Then children learn many things from their family members. Children learn many things from their parents and how their parents are working, how they are handling the house, how they are handling all the children and all that. Okay. Now we are going to learn the advantages of the nuclear family. हम लोगों को न्यूक्लियर फैमिली से क्या क्या एडवांटेज मिलते हैं वो हम आगे देखते हैं। Both can earn to provide financial stability. अब जो न्यूक्लियर फैमिली है उसमें फादर और मदर दोनों ही जॉब करने के लिए बाहर जाते हैं और बच्चे घर पे रहते हैं। they do their own work, okay, like studies and all that. They can take entertainment from TVs and mobiles also. But these are the advantage कि parents both can earn and provide financial stability to the children and the house, and they can fulfill the dreams of the children. बच्चों के जो सपने हैं, बच्चों की जो इच्छा है, बच्चों को कुछ लाना है तो वो लोग इजीली ला सकते हैं वो न्यूक्लियर फैमिली में। ये है एडवांटेजेस। व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस है चिल्ड्रन कांट गेट प्रॉपर लव एंड अफेक्शन। अब जब पेरेंट्स घर से बाहर जा रहे हैं तो घर पे बच्चे अकेले हैं, वो लोग अकेले हैं तो उनको लव करने वाला, उनका टेक केयर करने वाला घर पे कोई नहीं होता है। नॉर्मली जॉइंट फैमिली में अगर पेरेंट्स बाहर गए हैं तो वी आर हैविंग ग्रैंड पेरेंट्स, दादा दादी, अंकल आंट, कजिन्स, बहुत सारे लोगों से हम घिरे हुए होते हैं जिससे हम सेफ भी रहते हैं, हमको लोनलीनेस फील नहीं होता है, उन लोगों से हमको लव मिलता है, दे केयर फॉर अस। ओके, दिस इज द डिसएडवांटेज ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली कि चिल्ड्रन कांट गेट प्रॉपर लव एंड अफेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज कपल हैज टू सफर फ्रॉम द लैक ऑफ कॉन्फिडेंस एंड सपोर्ट। means कि couple has to suffer from the lack of confidence and support. If all the members are there and if they are having any problem, they share their problems with their elders like grandparents. Father, mother will share their problems with their parents, and that will give them a good support and a nice solution. And these all are the disadvantage that in the nuclear family they don't have all this support. Okay. This is the thing. I think this is we should live in a joint family, but if anyone is not having that thing, then we can't help. Thank you. Now we are continue with the extended family. अब यहाँ पे हम लोगों को रमन का एग्जाम्पल दिया है कि अब हम कंटिन्यू करेंगे. We have given the now the topic is extended family.
इन लोगों ने हमको एग्जाम्पल दिया है रमन की फैमिली का। रमन फैमिली इज हैविंग अ एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली के हमने जॉइंट फैमिली के बारे में पढ़ा, न्यूक्लियर फैमिली के बारे में पढ़ा। नाउ वी आर लर्निंग अबाउट एक्सटेंडेड फैमिली। व्हाट इज एक्सटेंडेड फैमिली? बहुत बार ऐसा होता है कि दादा दादी, अंकल आंटी, मम्मा फादर, पेरेंट्स, बच्चे, सिबलिंग्स, कजिन्स, हम सब साथ में रहते हैं। पर कभी कभी ऐसा एक्सटेंडेड फैमिली में मतलब दादा के भाई होते हैं, ऐसे करके दादा के भाई हैं, उनके बच्चे हैं, ऐसे करके वो लोग बहुत ज़्यादा फैमिली मेम्बर्स हो जाते हैं, पर फिर भी वो एक घर में रहते हैं। उसके भी फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं, बट वी आर स्टडिंग अबाउट grandparents, parents, uncle, cousins, brother, sister, all living together in the same house. Okay? Extended family में ये सब एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो extended family में members ज़्यादा होते हैं, तो they love each other, they share their works with each other, and they share their problems also. They play the role of shoulders. एक से कंधा, सबको एक दूसरे की तकलीफ में सबको एक दूसरे का कंधा मिलता है, मतलब सपोर्ट मिल जाता है। ओके, दे लव ईच अदर, शेयर अ ग्रेट बॉन्डिंग अमॉन्ग देम। बॉन्डिंग इज अ टाइप ऑफ लव, एक दूसरे से लव रखते हैं, आपस में क्या प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं, आपस में सारा काम भी शेयर कर सकते हैं। कोई फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है तो भी किसी को कोई वरीज करने की जरूरत नहीं है, एक दूसरे की हेल्प के लिए दे आर ऑलवेज देयर। अब बेनिफिट्स है, प्रोवाइड कंटिन्यूटी इन द चिल्ड्रंस। आप अपन को पता होगा हमें कि बच्चों में आपस में ऐसा होता है जब वो अलग अलग रहते हैं तो एक दूसरे को जानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं कि ही इज़ माई फैमिली मेम्बर। समहाउ ग्रैंड पेरेंट के बच्चे का बच्चा है पर वो भी फैमिली मेम्बर ही है, पर वो लोग एक दूसरे को जानते नहीं है, बिकॉज दे डोंट लिव टुगेदर। तो एक्सटेंडेड फैमिली में यही होता है कि लोगों में आपस में बच्चों की भी आपस में बहुत अच्छी बॉन्डिंग होती है। अगर सपोज कुछ भी प्रॉब्लम है, अनफॉर्चुनेटली किसी का डिवोर्स हो जाता है, तो पेरेंट्स जो है फादर एंड मदर अलग हो जाते हैं, तो इसमें बच्चे को सारे फैमिली मेम्बर्स का एक्स्ट्रा अटेंशन, लव मिलता है, वो लोनली फील नहीं करता है। ये एडवांटेज है कि कभी अनफॉर्चुनेटली अगर किसी कपल का डिवोर्स हो गया है एंड फादर एंड मदर they are living separately, then also child doesn't have to suffer loneliness, frustration. He or she will get the support and love of the family members. Okay, love and care of the family members. This is the benefits. These are the benefits of the extended family. Now we are learning about the neighborhood. Neighborhood यानी जहाँ हम रहते हैं वहाँ के पास में जो भी घर है उसको हम नेबरहुड कहेंगे। नेबरहुड में जैसे आई एम जोशी, तो मेरे पास में कोई मिस्टर खन्ना भी होगा, गुप्ता भी होंगे, उनकी फैमिली होगी, उनके घर होंगे, तो वो हमारे नेबरहुड हो गए। और नेबर्स है जो दिस फैमिली, व्हाट आर नेबर्स? द फैमिलीज विच लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड नेबर्स। ओके, जो हमारे घर के नज़दीक में रहते हैं, आस पास रहते हैं, वो नेबर्स होते हैं। तो फैमिली दे हेल्प ईच अदर। नेबर्स भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं फैमिली की तरह, वो भी एक टाइप की फैमिली ही हो जाती है अपनी, क्योंकि हम कंटिन्यू उनके कांटेक्ट में रहते हैं, हम एक दूसरे से हर चीज़ शेयर करते हैं। हम तो नॉर्मली कोई नई डिश भी बनाते हैं तो एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो ये नेबर्स है जो एक दूसरे से लव करते हैं, कहीं जाते हैं तो साथ में जाना, पास में बैठना, हर चीज़ शेयर करना, नई डिशेज बनाई तो भी शेयर करना। तो कभी कोई ऐसा होता है कि कोई प्रॉब्लम हो गई, घर पे दूसरा कोई नहीं, सब बाहर गए हुए हैं, तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, जैसे कि कोई छोटे बच्चे को बुखार आ गया या फिर किसी को कुछ हेल्थ इश्यू हो गई है और घर पे कोई नहीं है, तो नेबर्स जो है वो एक दूसरे की हेल्प करते हैं, हॉस्पिटलाइज भी कर लेते हैं पेशेंट को। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा है। आई विल लाइक टू शेयर विथ यू चिल्ड्रंस कि जब हम लोग घर पे थे, हमारे पड़ोस में एक छोटे बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो, तो उसके घर पे कोई भी नहीं था, सिर्फ उसकी मम्मी थी। और ऐसे टाइम में उसकी मम्मी बहुत डर रही थी कि नाउ व्हाट टू डू, शी वाज नॉट अंडरस्टैंडिंग नाउ व्हाट स्टेप शुड आई टेक। तो हम उसके नेबर्स से हम वहाँ गए, उनको थोड़ा काम डाउन किया, बच्चे को पानी पिलाया, थोड़ी हालत क्रिटिकल थी, हमने उस बच्चे को हॉस्पिटलाइज कर दिया एंड ग्रेटली नाउ इज फाइन।
एकदम परफेक्ट है वो बच्चा, बट एंड ऑल आर हैप्पी। पर हम नेबर्स का यही काम है कि एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं। एनी टाइप रिलेटिव्स होते हैं वो थोड़े दूर रहते हैं तो आते आते टाइम लग सकता है, पर नेबर्स एकदम ऑन द स्पॉट वो लोग आ सकते हैं। तो नेबर्स जो है सारे फंक्शंस साथ में सेलिब्रेट करते हैं, सारे फेस्टिवल्स, होली, दिवाली, गणेश चतुर्थी, नवरात्रि, गरबा है, सब वो लोग साथ में एंजॉय करते हैं। ओके, दिस टाइम हम लोग कोरोना की वजह से नहीं एंजॉय कर पाएंगे इतना, बट नॉर्मली एवरी ईयर वी सेलिब्रेट ऑल द फंक्शंस एंड फेस्टिवल्स टुगेदर लविंगली। थैंक यू।